थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस दिन के लिए धन्यवाद करते खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। आइए हम सब याद करें कि वो कितना भला है, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर, कितना अद्भुत परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर। आइए हम सब साथ में गाएं, आइए हम सब साथ में उसकी आराधना करें। थैंक यू फादर, वी लव यू लॉर्ड। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे होठों से कैसे कहूं, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात। होठों से कैसे कहूं, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। आइए हम सब साथ में गाएं। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर
तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। थैंक यू फादर, तू खूबसूरत है परमेश्वर। तूने हमें आज तक संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब फिर गाए, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू। थैंक यू फादर। मसीह तू खूबसूरत है परमेश्वर, हम तेरे सामने झुकते हैं। थैंक यू फादर, वी लव यू लॉर्ड। हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। हम होठों से कह नहीं सकते कि हम तुझसे कितना प्रेम करते हैं खुदा। वी लव यू लॉर्ड। We thank you for everything you have done for us, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Let us hear from Sister Sophia how amazingly and wonderfully she experienced the presence of God, the Holy Spirit, and anointing in midst of fearful situation. Praise the Lord, Church. This is Sophia Joy from New Panvel. I would like to share a small testimony what the Lord has done in my life. As during this pandemic situation, you get all sorts of negative news and negative talks, and it really impacts the state of your mind. And the same happened with me, as I was thinking about it all over again and again, which was so disturbing. And I had messaged Pastor Joy for prayers, and then after Pastor had called me up and prayed for me and encouraged me with the Bible verses, which was so encouraging and anointing. At that moment, I felt the presence of the Lord, I felt the anointing of the Lord, and I felt the Lord Jesus beside me, protecting me, and the anointing was so powerful that I felt so happy and blessed at that moment. And I had told Pastor that as I'm speaking to you, I'm feeling so blessed and anointing. And I really thank the Lord Jesus, as He's always faithful to His children. It's only we who have to keep our hope and our faith in Him, because He loves His children. And I really thank the Lord for Pastor Joy in my life as my spiritual father. He has always been a blessed and anointed spiritual father who has always prayed and encouraged me in all situations of life. And I would like to thank Pastor Rekha, Auntie, and Baby Oracle as well, and the entire church who has always prayed for me. I would like to thank the Lord Jesus for the anointing which the Lord has blessed me, and the grace which the Lord has blessed as we keep our hope in Him.
Thank you, Pastor Joy, for your prayers, and thank you, Lord Jesus. God is love, परमेश्वर प्रेम है and we greet you all in Jesus' powerful name. और हम आप सबों का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के सर्व सामर्थशाली नाम Who is से full of love, जो प्रेम से भरा है and His verse says, "Those who know their God, they shall do mighty exploits." और उसका वचन कहता है जो परमेश्वर को जानते हैं वो बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे। So we are learning to know Him. तो हम सीख रहे हैं कि कैसे हम उसे जाने पहचाने। And knowing Him means having the relationship with Him. उसको जानना यानी उसके साथ रिश्ता जोड़ना। Jesus went up, यीशु मसीह ऊपर गया but before that He gave us a promise. पर उसके पहले उसने हमें वायदा किया He said in John 14:6, और उसने यूहन्ना 14 में कहा 16, 16 में, "And I will pray the Father, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा and He shall give you another comforter, और वो तुम्हें दूसरा आराम देने वाला देगा that He may abide with you forever." कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। We have a guarantee that Jesus gave us the another comforter, Madadgar. तो हमें ये पक्का है कि पर यीशु मसीह ने हमें दूसरा मददगार दिया है It is sent by the Father. और वो पिता की ओर से भेजा हुआ है Jesus' prayers are never rejected. क्योंकि यीशु मसीह की प्रार्थनाएं कभी भी नकारी So नहीं God the जाती। Holy Spirit is in us. तो पिता जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर है। So we need to know that He is in us, तो हमें जरूरी है जानना कि वो हमारे अंदर है and we need to know Him. और उसे पहचानना भी है We need to have a relationship with Him. और हमें जरूरी है कि हम उसके साथ रिश्ता Knowing जोड़ें। Him means having a deep relationship and उसको oneness. जानना यानी उसके साथ गहरा संबंध रखना, उसके साथ एक होना है। If we will open our Bibles to Acts 5:3-4, अगर हम हमारे बाइबल को खोलेंगे प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, it says in the verse 3, Peter said, "Ananias, why had Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost and to keep back a part of the price of the land?" तीसरे वचन में कहता है, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। That means we can know very well इसका मतलब है हम अच्छी तरह से that जाने Holy Spirit dwells in us. कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर And रहता if है we are one with God, और अगर हम परमेश्वर के साथ एक है, if we have a relationship with God, अगर हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, we have a promise of God in us. तो हमारे अंदर उसका अभिवचन And भी we है know that और हम ये अच्छे से जानते God हैं the Holy Spirit dwelt in us. पिता I'm पवित्र sorry, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है. Holy Spirit is in us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर So, है। so Ananias not lied to Peter, but he lied to the Holy Spirit. हनन्या ने पतरस से झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। We have a surety हमें पक्का है that God the Father gave us Holy Spirit. कि पिता परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, For Jesus prayed for it. क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना We किया। have another comforter. हमारे पास दूसरा मददगार है, Same like Jesus. यीशु मसीह जैसा। In the fullness of God, परमेश्वर की परिपूर्णता में He is there in us वो हमारे अंदर to है, direct us हमें अगुवाई करने के लिए and to dwell in us. और हमारे अंदर निवास करने के लिए। First Corinthians 3:16 says, पहला कुरिन्थियों का किताब 16 तीसरा अध्याय 16 वचन कहता है, "Know you not that you are the temple of God, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो and the Holy Spirit dwelt in you?" और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास We करता need to है। know that Holy Spirit dwells in us. हमें ये जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमें निवास It करता doesn't है dwell in the temple made by the hands. और वो उस मंदिर में निवास नहीं करता जहाँ जो
हाथ से बनाए हुए मंदिर है। हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं निवास करता, नहीं तो इस पैंडेमिक में भी वी वुड हैव डाइड बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव टेम्पल्स। और इस पैंडेमिक में भी हम मर जाते थे क्योंकि अब हमें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं। बट नाउ वी नो दैट वेयर गॉड ड्वेल्थ, पर हम जानते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहाँ जीवित है। गॉड ड्वेल्थ इन यू ब्रदरन, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप में निवास होली करता स्पिरिट है। ड्वेल्थ इन अस, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वी निवास आर द करता टेम्पल है ऑफ गॉड। और हम परमेश्वर का मंदिर है। And Paul says in the 6th chapter and 19th verse, और पौलुस 6वें अध्याय 19वें वचन में कहता है, what? Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है which is in you, जो आपके अंदर है, which is you have God of God, and you are not your own? जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। Holy God dwelt in us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। He is in us. वो हमारे अंदर We need है। to know God in us. हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे Holy अंदर Spirit है। dwelt in us. ओ पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास This is करता the है। awesome work Jesus did for us. और ये अद्भुत काम है जो यीशु ने हमारे लिए किया That now the है। Holy Spirit will not just come and go और पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि सिर्फ आएगा और चला जाएगा like in the Old Testament, जैसे पुराने नियम में but now He है, has come to dwell with us forever. पर वो अब हमारे अंदर है, हमारे अंदर निवास करने आया Our है। bodies are His dwelling place. और हमारा शरीर जो है उसका निवास स्थान है। How glorious God is. ओ कितना महिमावंत You परमेश्वर are not है। alone. आप अकेले नहीं है। You are not alone. ओ आप अकेले नहीं है। Second thing, और दूसरी बात, what He does. वो क्या करता है? If He dwells in us, अगर वो हमारे अंदर रहता what है He does. तो वो क्या करता है? 1 Corinthians 2nd chapter 11th verse. पहला कुरिन्थियों का किताब 2 अध्याय 11 वचन, For what man knows the things of a man, and save the spirit of man which is in him, even so the things of God know no man but the Spirit of God. मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। So we all know तो हम सब जानते हैं that who can know man better? कौन मनुष्य को अच्छे से जान सकता है? The Spirit which dwelt in man. आत्मा जो मनुष्य के अंदर निवास In the करता है। same way, उसी रीति who से can know God? कौन परमेश्वर को जान सकता है? The same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा। He knows God. वो परमेश्वर को जानता है And He can tell all things about Him. और वो अपने लिए सब कुछ बता सकता No one है। else know God. कोई और परमेश्वर को नहीं And the जानता। same Holy Spirit, और वही पवित्र आत्मा, the Spirit of God, परमेश्वर का आत्मा dwelt in us. हमारे अंदर The निवास करता fullness of है। God परिपूर्णता में परमेश्वर dwelt के in us, वो हमारे अंदर that we may रहता have है a fellowship with Him, कि हम उसके साथ सहभागिता that we कर may सकें fear no more of this world and worldly things. और हम इस जगत से, इस दुनिया से डरे नहीं, न दुनिया के चीजों Don't से। fear of anything. किसी बात से Not आप to be डरिए afraid मत। of anything. किसी भी बात But से आप God is डरिए with मत, us. क्योंकि He परमेश्वर is हमारे in साथ है, us. वो हमारे अंदर है। And the Holy Spirit of God will give a full knowledge of God to us. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें पूरा ज्ञान देगा परमेश्वर So का। all things of God dwelt in us. तो सारी चीजें परमेश्वर की हमारे अंदर है। So we know very well तो हम अच्छे से जानते हैं that God in us. कि वो परमेश्वर हमारे अंदर I है। lack no good. वो मुझे किसी भी अच्छी Psalm और बड़ी बात की 23 कमी beautifully नहीं। completes here. और भजन संहिता 23 यहाँ पे सुंदर रीति से पूरा होता है That He is my shepherd. कि वो मेरा I चरवाहा shall है। not want. वो मुझे किसी भी अच्छी बड़ी बात की घटी So नहीं Holy दी। Spirit dwelt in us तो पवित्र आत्मा हमें निवास करता that है we may know more of Him. कि हम उसे और
जाने that we may have a strong relationship with God. और हम परमेश्वर के साथ गहरा संबंध जोड़े। Paul says in Romans 8:2, पौलुस रोमियो का किताब 8:2 में कहता है, for the law of the Spirit of life is in Christ hath made me free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। The Spirit of life तो जीवन का आत्मा dwelt in us. हमारे अंदर रहता Spirit है। of life जीवन का आत्मा in Christ क्रिस्त के who has अंदर set us free from the sin, Just- law of sin and death. जिसने हमें पाप के उस नियम से मुक्त किया है। Only the Spirit of life, केवल जीवन का आत्मा as we are in Christ, जैसे हम क्रिस्त के अंदर the है, same Spirit of life, वही पवित्र आत्मा the जो same जीवन Spirit का of है, life, वही He dwelt जीवन in का us, आत्मा, वो हमारे अंदर रहता है and He frees us from the law of sin. और वो हमें पाप के नियम नियम से से हमें स्वतंत्र करता He है frees us from the law of death. और मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया है। But the law says पर नियम कहता है, व्यवस्था कहती है, in Romans 8:1, रोमियो का किताब 8 what it says. एक में वहाँ पे क्या कहता है? Oh, beautiful. वो बहुत ही सुंदर It's है, amazing. ये बहुत ही अद्भुत है। Wages of sin is death. पाप का वेतन मरण है, But praise God, पर परमेश्वर की the स्तुति Holy हो। Spirit which dwelt in us, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, He broke that pattern. उसने उस तरीके को तोड़ डाला And He has changed our labor. और उसने हमारे वेतन को बदल डाला। He has changed our works. उसने हमारे कामों को बदल Now डाला। we work to know God. अब हम परिश्रम करते हैं परमेश्वर को जानने के लिए। It's amazing. ये अद्भुत है। Therefore, there is no condemnation. तो इसलिए कुछ भी दोष नहीं, ताड़ना दंड नहीं, की आज्ञा नहीं दंड की है आज्ञा for those नहीं। who are in Christ Jesus. उनके लिए जो क्रिस्त यीशु के And the अंदर Holy है Spirit, और पवित्र the आत्मा, Spirit of life जीवन का in आत्मा Christ क्रिस्त के अंदर makes us free from sin, law of sin and death. वो हमें पाप और मृत्यु के व्यवस्था से हमें स्वतंत्र He कर दिया frees है us. और वो हमें मुक्ति दिया है। He frees us. वो हमें He मुक्ति sets दिया us है। free वो हमें from स्वतंत्र every करता law है। of sin and death. हर एक व्यवस्था से जो पाप और Let's have a मृत्यु की है, relationship with the Holy तो आइए Spirit. हम पवित्र आत्मा से Let's रिश्ता have a रखें। relationship with God. हम परमेश्वर के Let's साथ रिश्ता know रखें Him. और उसे जाने। Those who know Him, और वो जो उसको जानते they shall हैं do mighty वो exploits. अद्भुत कार्य We need to करेंगे। know Him. तो हमें जरूरी है कि हम उसे जाने, That He not only dwells in us, वो न सिर्फ हमारे अंदर निवास but the करता Spirit है, of life, पर जीवन का He आत्मा gives life वो जीवन देता and है sets us free from the law of sin and death. और वो हमें मृत्यु और पाप के व्यवस्था से स्वतंत्र करता है। John 16:13. यूहन्ना 16:13। Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you in all truth. For shall not speak of Himself, but whatever He shall hear, that He speaketh, and He show you the things to come. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। We have the Spirit of truth, हमारे पास सच्चाई का आत्मा and है He dwelt in us. और वो हमारे अंदर निवास He करता made a है home in us. और उसने हमारे अंदर अपना घर He बनाया will है। guide you वो आपको अगुवाई करेगा into all truth. सारी सच्चाई में। He will speak with you, वो आपसे बातें not करेगा, of Himself, उसके खुद की नहीं, but He will speak everything that He hears from God. पर वो सब बताएगा जो परमेश्वर से सुनता है। Fullness of God's counsel is available within you as we have a relationship with Him. और परमेश्वर की पूरी जो काउंसिल है वो आपके अंदर है, क्योंकि वो हमारे अंदर निवास करता है। जैसे हम उसके साथ रिश्ता रखते हैं, we have the fullness of life.
और हमें जीवन की परिपूर्णता We मिलती need to है। have a relationship. हमें केवल एक करना है, उसके साथ रिश्ता रखना That is है, to know God. और ये है कि हम उसे जाने, Know God परमेश्वर को means जाने, have a relationship यानी with Him. उसके साथ रिश्ता If you जोड़े। have a relationship with Him, अगर आपका उसके साथ रिश्ता है, you will hear what the Holy Spirit is speaking with you. तो आप सुनेंगे कि पवित्र आत्मा आपसे क्या And the बात कर same रहा Holy है, Ghost will show you and direct you. और वही पवित्र आत्मा आपको अगुवाई And He करेगा, will help us all to show the things to come. हमें मदद करेगा और सारी चीजें जो हमें करनी चाहिए उसका मार्गदर्शन करेगा। Paul says in Ephesians 4:30, पौलुस इफिसी का पत्र 4 और 3 में कहता है, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। We are being sealed. हमारे ऊपर सील The लगाई गई Holy है। Spirit seals us. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर शाप Somebody लगाता say है। amen. कोई कहे आमीन। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप jump हैं, in a power. ओ सामर्थ के साथ कूदे, Jump in ओ love. प्रेम के साथ कूदे, Jump, for God is with you. इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपके You are साथ है। sealed. आपके ऊपर And मोहर लगाई nothing गई can, है। no one can touch you and harm you. कोई भी आपको छू नहीं सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा You're सकता। sealed unto the day of redemption. और छुटकारे के दिन तक आपके ऊपर शाप So लगाई गई God's है, all plans will be A and amen for you. और परमेश्वर की सारी योजनाएं आपके लिए हाँ और आमीन है। So don't grieve Him. तो परमेश्वर की आत्मा को दुखित मत करो। How can you grieve Him? कैसे आप उसे दुखी कर If you सकते not हैं? have a relationship with Him. अगर आप उसके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे I तो tell you today मैं आज आपसे कहता and हूँ plead with you. और आपसे विनती करता Have a हूँ, relationship with Him. उसके साथ संबंध जोड़िए। For that purpose God has called us. और उसी मकसद के लिए उसने हमें बुलाया है। We are not just to know about Him. केवल हम इसलिए नहीं आए कि हम उसे सिर्फ जाने, Read Bible daily. रोज बाइबल पढ़े, Oh, God is like that. God is like this. God is like परमेश्वर that. ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, But we are called here पर हम बुलाए गए हैं यहाँ that we may have पर a कि relationship. हम उसके साथ संबंध जोड़े That we may say, I know Him. और हम कह सके कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, He is awesome. वो अद्भुत He is है, wonderful. वो अद्भुत Have है। relationship with उसके Him. साथ संबंध जोड़िए And do not grieve Him. और उससे दुखित मत If you कीजिए। not keep relationship, अगर आप उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे then you will grieve Him. तो आप उससे दुखित करेंगे। Psalmist 139:7. भजन संहिता 139 और 7वां There we वचन, can find वहाँ पे हम देख सकते हैं He covers you and me completely. वो आपको और मुझे पूरी तरह से ढक लेता How can you है। know that God covered you? और कैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको ढक You लेता know है? the Holy Spirit of God is in you. इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, Oh, He's in you. वो आपके अंदर He है, covered you. वो आपको पूरी तरह से कवर करता है। Whither shall I go from your spirit? मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर Or whither जाऊं? shall I flee from your presence? वह तेरे सामने से किधर भागूं? You can't run anywhere. ओ आप कहीं भी भाग नहीं सकते For the उससे, Holy Spirit of God is in us. क्योंकि परमेश्वर का His पवित्र आत्मा presence is हमारे awesome. अंदर है और उसकी उपस्थिति अद्भुत He is है continually and completely covers us. और वो पूरी तरह से हमें ढक लेता है। Say, I am well protected. बोलिए मैं पूरी तरह से सुरक्षित Say, हूँ। I am fully cared of Him. He cared for me. ओ वो मुझे पूरी तरह से संभालता है, He is mindful of me. उसका मन मुझसे भरा So हुआ Holy है। Ghost covers us. तो पवित्र आत्मा हमें कवर करता So we है, can't run anywhere away from Him. तो हम उससे भाग कर कहीं भी जा नहीं सकते। And we can learn that the Holy Spirit moved on the water, face of the water in Genesis 1:2. और उत्पत्ति 1:2 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। You know, आप जानते the हैं Holy Spirit is in us, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, not by the law,
व्यवस्था से नहीं, but by the grace पर अनुग्रह से and the faith in Lord Jesus Christ और क्रिस्त यीशु में विश्वास के द्वारा के द्वारा we got the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा मिली। Oh, we have a Holy Spirit of वो God. हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। He is with us. वो हमारे साथ है। We have received Him. हमने उसे पाया है। You have received the Spirit of God. हमने पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा Not पाया by है। our own works. वो हमारे खुद के कामों Not से by the नहीं, works of law. नहीं व्यवस्था के कामों But by से, hearing of faith. पर विश्वास को सुनने से। Yes, you can receive the Holy Spirit. हाँ, आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। Right now you can have अभी Holy इसी Spirit. क्षण पवित्र आत्मा You को can पा have the सकते हैं। baptism of the Holy Spirit. आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी मिल सकता है। Right now you can experience His fullness. अभी इसी क्षण आप उसकी परिपूर्णता को ले सकते हैं। How? कैसे? As you hear the faith right now. जैसे आप इस विश्वास को सुन रहे हैं इसी समय, He comes by faith. वो विश्वास के साथ आता When है। we hear, when the hearing by the faith is done, जब विश्वास के साथ सुनना हो and जाता we are है hear of faith, और विश्वास के साथ जब हम सुनते हैं we receive Holy Spirit. तो हम पवित्र आत्मा को And पाते we know हैं। that Holy Spirit is in us. और जब हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे We अंदर है, experience God who made the heavens and the earth. तब हम उस परमेश्वर को का अनुभव लेते हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को The बनाया same God who moved at the face of the waters in the beginning. और जो शुरुआत में वही परमेश्वर जो जल के ऊपर मंडराया, The same God is in us. वही He covers परमेश्वर us. हमारे He अंदर है, fills वो us. हमें He भरता comes है, into us. हमें दबता है, हमारे अंदर आता And है we lack no good. और हमें किसी भी बड़ी बात की घटी नहीं होती। Are you foolish? क्या आप मूर्ख हैं? Having begun in the Spirit, आत्मा के साथ शुरुआत किया are you now made the perfect by the flesh? या आप शरीर में पूर्ण हो रहे? The verse 3 of the Galatians 3:3 says, गलतियों का 3:3 कहता है, our perfection is not in flesh. We don't हमारा- receive perfection in flesh, through flesh. हम शरीर के द्वारा परिपूर्ण नहीं होते, But we begin in the Spirit. पर हमने आरंभ जो किया वो पवित्र आत्मा We ने will not किया। act foolishly anymore. और निर्बुद्धि से हमने कुछ नहीं किया। हम नहीं करेंगे हम अभी. नहीं Let's करेंगे renew अभी। ourselves. आइए हम अपने आप को नया करें। Oh, we have suffered a lot. ओ हमने बहुत सारे सताव को उठाया, Our suffering is not in vain. पर हमारा जो दुख है वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। If it is vain, अगर वो गया भी, He therefore that ministers to you the Spirit and the works miracles among you, does he by the works of the law or by the hearing of faith? सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? He gave us gift of Holy Spirit. उसने हमें पवित्र आत्मा का का दान दिया है, and he works miracles among us. और वो हमें हमारे अंदर चमत्कार करता है। Now also, अब भी if you know him, अगर आप you will उसे not be जानते हैं, discouraged. तो आप निराश नहीं होंगे। He can do all things. वो सब कुछ कर He सकता does है। all things. वो सब With कुछ him, करता all है। things are उसके possible. साथ We सब कुछ can संभव be है। with him right हम now. अभी इसी क्षण उसके साथ हो He सकते does हैं। miracles. वो अद्भुत काम करता है। Yeah, you will say in this coronavirus, yes, in this आप coronavirus. कहेंगे कि क्या इस कोरोना वायरस में भी? मैं कहता हूँ हाँ, इसी Yes, you कोरोना need to go वायरस out में and भी। lay hands and pray. हाँ, आपको बाहर निकलना है, उन पर हाथ रखना है, प्रार्थना And the करनी है। Spirit of God will heal the sick. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा बीमारों को चंगा करेगा। That's why He commanded you to go out. इसीलिए वो आपको आज्ञा देता है, बाहर जाओ। For what is there in you that you may go out? आपके अंदर है ही क्या कि आप बाहर जाए? We have the Spirit of God. Somebody ओ, say हमारे amen. अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा You need है। to shout and say amen. आपको चिल्ला कर You need to कहना है, agree with the Spirit of God and receive the Holy Spirit inside you. Be filled by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा को स्वीकार करो, उसके साथ सहमत हो जाओ। Agree with Him. उसके साथ सहमत हो जाओ। Hearing of faith comes Holy Spirit. और विश्वास के सुनने से पवित्र आत्मा आता है। Hebrew
2:4. इब्रानी 2:4। God also bearing them witness, both with the signs and wonders, and with diverse miracles, and gift of the Holy Spirit according to His will. और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के God द्वारा is इसकी same गवाही yesterday, देता today, है। and forever. परमेश्वर कल He is आज का unchanging. He did miracles, He will do it again. खुदा जिसने कल चमत्कार किया आज भी चमत्कार करेगा। Only we need to trust Him. केवल हमें उस पर We need to भरोसा open करना है। ourselves that we are not alone. अपने आप को हमें खुलासा करना है, हम अकेले नहीं हैं। We have the Spirit of God in us. हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है God Himself bears the witness. और परमेश्वर खुद गवाह है Oh, He bears the witness. और वो हमें अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह दिखाता He है gives according to His pleasure. और उसके खुद के खुशी से हमें देता है Signs, wonders, and miracles, चिन्ह, चमत्कार and gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का दान According to His will. उसकी इच्छा If से। you're ready अगर आप to तैयार make a हैं relationship with Him उसके साथ संबंध and जोड़ने wait के on लिए Him, और उस पर Bible रुकने says के He is लिए, ready to pour out His Spirit on us. बाइबल कहता है कि वो तैयार है हमारे ऊपर God अपने doesn't आत्मा give को Holy देने Spirit के with लिए। measure, ओ परमेश्वर पवित्र आत्मा नाप तोल के नहीं but He देता gives in fullness. पर परिपूर्णता से देता People है of God, you are in the image of God. हे परमेश्वर के लोगों, लोगों आप परमेश्वर के स्वरूप हो so be ready to be filled by God. तैयार हो चाहिए Don't आप be परमेश्वर alone. से बनने Don't के लिए। panic. ओ अकेले मत रहिए This आप is a डरिए time you मत। need to have a fellowship of God. ये समय है परमेश्वर के साथ This is a time सहभागिता to का। break the jaw of the enemy. ये समय है कि दुश्मन के उस जबड़े This को is the तोड़ना time है। to raise in a power. ये समय है सामर्थ के साथ खड़ा Let होना है everyone know that God lives in you. हर एक जाने की परमेश्वर आप में जीवित है So hear of faith. तो विश्वास का Allow सुनिए God to work and minister to you. और परमेश्वर को इजाजत दीजिए कि वो आप में काम करे He आपकी who is सेवकाई same, करे। He who is unchanging. वो जो वैसा ही है जो कभी नहीं बदलता He is ready to do a diverse miracles. और वो बहुतायत का चमत्कार करने के लिए तैयार. You need to wait on Him. वो आपको उस पर It's रुकना not a है fasting and prayer. It's not a my prayer. It's not anyone's prayer. It's a power of God is going to pour out on you. ये आपके उपवास प्रार्थना से नहीं ये मेरे प्रार्थना से नहीं ये किसी के प्रार्थना God से नहीं bestows पर परमेश्वर in fullness. करेगा। ओ परमेश्वर परिपूर्णता से आपके ऊपर He उंडेलता pours है according to His will. वो उसकी खुद की इच्छा से उंडेलता है Should we wait on Him? क्यों ना हम उसके ऊपर रुके And should we learn from और Him? उससे सीखे Should we know the God, the Father, God, the Son, and God, the Holy Spirit? क्यों ना हम उससे जाने पिता परमेश्वर पुत्र पुत्र परमेश्वर, परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर. Let's know Him. तो आइए हम उसे जाने Oh, let's receive Him उसे प्राप्त of the करें hearing of the faith. ओ विश्वास का सुनकर God is good. परमेश्वर Harden अच्छा not है। your heart. अपने हृदय को कठोर मत This is a कीजिए time to move in the Holy Spirit. ये समय है This हमें is a पवित्र time to आत्मा से move in चलना है, power. सामर्थ के This साथ is a चलना time है। to come out of deception. ये समय है कि हमें फसावट से बाहर आना है Accept Him in your hearts. Open your hearts अपने हृदय को खोले and receive the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के दानों को प्राप्त And करें receive the gift of Holy Spirit. पवित्र आत्मा Father, के I दान को thank प्राप्त you. करें पिताजी मैं धन्यवाद करता हूँ As those who wait on you वो जो तेरे ऊपर रुके हैं with an expectations, अपेक्षा के साथ let them receive. उन्हें प्राप्त हो जाए Let all their needs be met, Father, उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए according पिता। to your riches तेरी धन संपत्ति के in अनुसार glory. महिमा में In Jesus' name. यीशु के नाम God में bless. परमेश्वर आपको God आशीष be with दे परमेश्वर आपके साथ Amen. रहे आमीन आमीन